Welcome to the webinar today, brought to you by MySakhi. MySakhi, the CSR initiative of Jackson Pal Pharma. To learn about this initiative, MySakhi, please scan the QR code on the screen and reach the website www.mysakhi.in. Today we have with us experts in dialogue on menopause and the role of family support in menopause and beyond. We have Dr. Ragini Agarwal and clinical psychologist and a certified therapist, Dr. Munia Bhattacharya. Hi. They will discuss about the role of family support for menopause and beyond. Today's session is courtesy MEMUP. MEMUP is the latest in menopausal hormone therapy brought to you by Jackson Pal Pharma, Nari Division. We welcome and thank all those who have joined us today as participants. This web series, Menopause Dialogues, is a part of Jackson Pal's ongoing CSR initiatives. These initiatives are to raise awareness and to promote better management of women's health. It is as a New Year gesture, we also have sent out a Amazon best-selling book. This book is Finding Your Balance. This is a book on perimenopause and beyond. This has already been sent out this week and should be reaching the attendees of last two webinars. In case anybody from you all is also interested to get a copy of this book, you can put your phone number or your address in the chat box or WhatsApp on the phone number given here. Now, to begin this webinar, let me introduce our experts. Dr. Munia Bhattacharya, clinical psychologist and a certified therapist. She's a senior consultant psychologist at Marengo Asia Hospital in Gurugram. Hi. She specializes in stress management, treatment of depression, anxiety and phobias, obsession, psychosis, and other emotional, cognitive behavioral issues. With advanced master practitioner counseling as counseling psychologist, psychotherapist, she's going to guide us through this life stage so that we navigate through this life stage with ease. Our lead for these menopause dialogues, as you know, is menopause expert Dr. Ragini Agarwal. She is the incoming Secretary General. In February, she's going to take over as the General Secretary General of Indian Menopause Society, a nationwide society. She is passionately involved in spreading public awareness on women's health, and she is the director AA Dharma Science Complete Clinic for Women's Health in Gurugram. She is an aesthetic, functional, and urogyne surgeon, and she specializes in female sexual health. Over to you, Dr. Ragini, to begin the session, ma'am. Thank you, Deepika. नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में. Today we are going to discuss a very important thing. Many times when we talk about the menopause, this particular aspect of menopause is not discussed. As in previous episodes, we have talked many times that menopause is a stage of eternal truth in the woman's life. And it is because of the lack of the female hormones in the body. And this lack of the female hormone in the body causes many problems. And one thing which is really very important and surpass everything is the mental health. At this time, the mental issues come up. Woman is anxious. She has lots of brain fog, anxious, mood swings, not happy, and in turn she become
what you can say is little chirchida, not very pleasant, and this all affect the whole family, and the family blames the lady without understanding what she is suffering. And at this time, this, जैसे कहते हैं नाजुक दौर से गुजर रही है वो, उस समय उसको सपोर्ट चाहिए पूरे परिवार का, ना सिर्फ हस्बैंड का बल्कि बच्चों का भी। इस समय बच्चे मोस्टली जो यंग बच्चे होते हैं 18 to 25 एज ग्रुप के बीच में होते हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। उनको तो लगता है मम्मा दिन भर चिक चिक करती रहती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द अंडरस्टैंड मेनोपॉज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, नॉट इट इज द ओनली फीमेल हु इज गोइंग टू गेट द मेनोपॉज और इन मेनोपॉज, टू अंडरस्टैंड कि मेनोपॉज से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आपके मेनोपॉज के लिए आप क्लिनिक में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, साथ में अपने पार्टनर को लेकर के जाएं। और इस एपिसोड को आप दोबारा जरूर अपने पार्टनर को, हस्बैंड को, बच्चों को, फैमिली में और लोगों को सुनवाइएगा, क्योंकि इसकी रिकॉर्डेड वर्जन mysaki.com पे अवेलेबल होगी। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुनिया भट्टाचार्य, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बिहेवियरल थेरेपी में एक्सपर्ट हैं, और इसी के बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। तो डॉक्टर मुनिया, आपका स्वागत है। हाय, गुड आफ्टरनून ऑल, गुड इवनिंग, नमस्ते। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर रागिनी ने बताया कि ये एक बहुत ही नाजुक दौर है। ये जब हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग सब जानते हैं कि टीनेजर एडोलेसेंट पीरियड एक स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस वाला पीरियड है, बिकॉज उस समय वो बच्चे ना चाइल्ड में काउंट होते हैं ना एडल्ट में काउंट होते हैं, वो सैंडविच बन के रह जाते हैं। ठीक उसी तरह से मेनोपॉज भी एक ऐसा स्टेज है जहां हम ना ओल्ड एज में आते हैं, ना यंग एज में आते हैं, ना नॉट एडल्ट एज में आते हैं। वो एक सैंडविच की तरह रहती है, और वो इमोशन हमें समझना होगा कि हम उसे कैसे सपोर्ट करें। जैसे कि मेनोपॉज एक चैलेंज है, ये इस पीरियड में हर एक फैमिली मेंबर को समझना होगा कि ये किस तरह से, किस दौर से जा रही है। जैसे कि मैम ने बोला कि बच्चे बोलते हैं कि मम्मी बहुत चिड़चिड़ करती है। नॉट ओनली बच्चे, मेरे पास पेरेंट्स भी हस्बैंड भी आते हैं जो बोलते हैं कि हर टाइम चिड़चिड़ करती है, बेड पे पड़ी रहती है, कुछ बात करने से ही गुस्सा होने लग जाती है। तो वहां हमें सपोर्ट देने की जरूरत है। कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी एक ऐसा ब्रीच होगा मेनोपॉजल पीरियड के वुमेन के लिए, जो रिलेशनशिप को बरकरार करके रखेगा, हैप्पी करके रखेगा। जैसे कि रिसर्च करना पड़ेगा हमें फैमिली मेंबर्स को कि ये किस दौर से गुजर रही हैं, उनके टेम्पर क्यों है, वो गुस्सा क्यों कर रही है। जैसे हस्बैंड्स बोलते हैं या फैमिली मेंबर बोलते हैं कि, या बच्चे बोलते हैं कि मैं तो पहले भी ऐसे ही करता था, उस समय तो मम्मी का ऐसा रिएक्शन नहीं होता था, या मेरी वाइफ का ऐसा रिएक्शन नहीं होता था, अभी ये हर बात पे रोने लग जा रही है, फटीग फील कर रही है। तो यहाँ हमें उन सारी चीजों पे रिसर्च करना होगा कि ये रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं, ये किस दौर से गुजर रही है। क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे यंग एज को हम मिस करते हैं, हमारी एनर्जी को मिस करते हैं, तो हर बात में हम लोग लो फील करने लग जाते हैं, डिप्राइव्ड फील करने लग जाते हैं, जिसके कारण टेरी होते हैं, फटीग फील होने लग जाता है। नेक्स्ट, बी पेशेंट। कभी कभी जो पार्टनर्स होते हैं या फैमिली मेंबर होते हैं, वो उनको लगता है कि और कितना दिन झेले, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, किसी का काफी लंबे समय तक ये मेनोपॉजल चेंजेस रहते हैं, किसी की जल्दी खत्म हो जाती है, किसी किसी के 15 इयर्स तक चलते हैं। तो वहां फैमिली मेंबर्स को, जो घर के मेंबर्स हैं, उन्हें सपोर्ट करना होगा पेशेंटली। नहीं तो यहाँ वो ऑलरेडी बहुत परेशानी से जा रही हैं। एक ऐसा स्टेज है जहां हम ओल्ड एज में भी जा रहे हैं और एडल्टहुड में भी हैं। तो यहाँ हमें बहुत पेशेंटली अपने आप को हैंडल करना होगा। टॉक टॉक एंड टॉक।
कभी कभी होता है ना कि मेनोपॉजल जो फीमेल्स होती हैं उनको लगता है कि मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो जिस स्टेज में रहती हैं उनको ऑलरेडी बहुत लो सेल्फ एस्टीम फील होता है, कॉन्फिडेंस इश्यूज होते हैं। उस जगह में उनको खुद के लिए ही खुद ही वो लो फील करती है। और जब थोड़ा सा भी हम इग्नोर कर दें या बातें नहीं करते तो लगता है शायद मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, या मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, या मेरा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है जिसके कारण मेरे बच्चे या फैमिली मेंबर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे अवॉइड कर रहे हैं। तो वहां हमें उनसे बात करके कम्युनिकेट करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। बिकम अ टीम, ये सिर्फ और सिर्फ अगर मेनोपॉज फीमेल को है, फैमिली में माँ को है या पत्नी को हो रही है, तो सिर्फ ये माँ और पत्नी के लिए नहीं है। हमें एक टीम डेवलप करना होगा कि हाँ तुम्हें प्रॉब्लम है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हेल्प करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, तुम्हारा ये झेला नहीं जा रहा है। इसकी वजह हम बोलेंगे कि हम ट्राई कर रहे हैं, पर कहीं कहीं मुझसे गलती हो जा रही है, इसलिए मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। तुम बताओ मुझे क्या करना है। एज अ टीम हमें वर्क करना होगा। आस्क व्हाट शी नीड्स। कभी कभी होता है ना कि अरे पहले तो ऐसे कर देता था, इसमें चिड़चिड़ नहीं करती थी, अभी क्यों गुस्सा कर रही है। पहले तो मम्मी मुझे टिफिन में ऐसे ऐसे वेराइटीज बना के देती थी, अभी नहीं बना के दे रही है। वो सारी चीजों को अब हमें अपने आप सोचकर वही पुरानी चीजें नहीं करनी होगी। अब वो मदर, वो वाइफ एक अलग जगह पे टर्न हो गई है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी बॉडी में ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो उनको हमें पूछ पूछ के करना होगा कि क्या आपको ये अभी प्रॉब्लम हो रही है, हम क्या इसके लिए ये उपाय करें। हमें उनको सपोर्ट देना होगा कि वो क्या चाह रहे हैं। वो पहले के टाइम में जब बच्चे छोटे थे और मम्मी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करती थी, या हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं और भागते हुए टिफिन दौड़ा रहे हैं लिफ्ट के पास या बाहर, वो पीरियड अभी उस माँ का, उस वाइफ का नहीं है। वो फटीग फील कर रही है, उनके माइंड में, उनके ब्रेन में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं। तो वहां अब हमारा टाइम है, बच्चे का टाइम है, हस्बैंड का टाइम है कि अब हम उनके लिए करें, उनके लिए सोचें। अप्रिशिएट हर कंफ्यूजन। कभी कभी होता है कि मेन समझ जाते हैं कि मेनोपॉज क्या है, पर ये एक लाइन समझने से नहीं होगा, या बुक में रीड कर लिए कि मेनोपॉज ये है और उसके लिए ये चेंजेस होते हैं, ये ऐसा नहीं है। हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग चेंजेस होती है। किसी का यस बहुत अच्छे से कट जाता है, कई हस्बैंड्स बोलते हैं कि मेरी मम्मी का तो बहुत अच्छे से कट गया था, मेरी दादी का बहुत अच्छे से कट गया था। ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी उतार चढ़ाव थे, शायद हम उस समय उस सोच में नहीं थे, वो अवेयरनेस नहीं थी कि हम समझ नहीं पाते थे। ये मूड स्विंग्स, इरिटेशन सब में होती है। उन कंफ्यूजन को हमें समझना होगा कि अगर ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे वाइफ, मेरे फ्रेंड की वाइफ को तो ऐसा नहीं हुआ था, तुम्हें क्यों हो रहा है। अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। उस कंफ्यूजन को हमें समझ के अच्छे से फिर हमें रिएक्ट करना है। रिमेंबर दैट मेनोपॉज इज अबाउट मोर देन हॉर्मोन्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्मोनल चेंजेस ही होते हैं मेनोपॉज में, इमोशनल और लाइफ चैलेंजेस भी होते हैं। बहुत सारी एजिंग, इनफर्टिलिटी लॉस होती है, जैसे स्किन हार्मोनल चेंजेस होने के कारण स्किन लूज हो जाते हैं, ओवरी एग प्रोड्यूस करना बंद हो जाता है, जिसके कारण आपको सुनना पड़ता है कि अब तुम माँ नहीं बन सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है, वो एनर्जी हमारे अंदर नहीं होती है। तो बहुत सारी चीजें हमें इस एज में देखना पड़ता है, और उसे हम फैमिली मेंबर्स को ही समझना पड़ेगा। उन्हें एक्नॉलेज करके उस चीजों को, जो कमी हो रही है, उसे फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फैमिली मेंबर्स की ही है। सपोर्ट अ पार्टनर्स डिजायर टू चेंज। कभी क्या भी क्या होता है कि हाउसवाइफ से भी मैं सुनती हूँ, या जो वर्किंग लेडी होती है उनसे भी सुनती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के बहुत अच्छे प्रीशियस टाइम मैंने बच्चों को पालने में, हस्बैंड को टेक केयर करने में बर्बाद कर दिया, अब मुझे मेरे अपने लिए करना होगा। बिकॉज उस समय एनर्जी रहती है वाइफ्स के पास, उनको अच्छा लगता है भाग भाग के टिफिन पकड़ाना, या हस्बैंड के लिए खाना बनाना, या बच्चे के लिए टिफिन बना के देना, या उनका टेक केयर करना, पढ़ाई कराना।
पर जब खुद के लिए जब बुरा लगने लग जाता है कि आज मुझे कोई केयर नहीं कर रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं अकेली हूँ, उस समय माइंड में खुद सेल्फ स्पार्किंग आती है कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, मैंने अपनी लाइफ के प्रीशियस टाइम खो दिए। तो वहां पार्टनर की या फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यस, आप बोलो क्या करना चाहते हो, मैं आपके साथ हूँ, आपको हेल्प करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। एम्ब्रेस चेंजिंग सेक्सुअलिटी, जैसे कि मैडम ने बोला कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण लिबिडो या फिजिकल डिस्कम्फर्ट आने लग जाता है, लो लिबिडो होने लग जाते हैं। उस समय क्या होता है कि वाइफ के अनकॉन्शियसली लगने लग जाता है कि मैं शायद मेरे हस्बैंड को सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरा लो लिबिडो है या मुझे फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सेक्सुअल पेन हो रहा है। तो वहां बैक ऑफ द माइंड भी सेल्फ गिल्ट स्टार्ट हो जाता है और वहां पे भी अपने आप को लो फील लगने लग जाता है। तो वहां हस्बैंड की जरूरत है कि आप अपनी वाइफ से बैठो, बात करो और कम्युनिकेट करो दूसरे वे से। आप या तो सेक्सुअली इन्वॉल्व हो या इंटीमेट हो या जो भी आपको कम्युनिकेट करके उसे सॉल्व करना है, आप सॉल्व करो सो दैट वाइफ को ये डिस्कम्फर्ट या लो फील ना हो कि मैं इस जगह पे भी अपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही। एंड रीअश्योर योर पार्टनर ऑफ योर लव एंड अट्रैक्शन, जैसे मैंने एक स्लाइड में बोला कि एजिंग दिखने लग जाती है, वो ब्यूटीनेस नहीं रहता है, या आप लो फील करते हो, एनर्जी नहीं रहती है, जो आप डेडिकेशन के साथ अपने हस्बैंड के लिए काम करते थे, टिफिन बना के या खाना बना के देना या ऑफिस में काम करना, वो सारी चीजें धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो फील अंदर से खुद को नेगेटिव फील होता है जिसके कारण हम वही रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि शायद मेरे अंदर ये कमी आ गई है, इसके कारण मैं अट्रैक्टिव नहीं लग रही हूँ, मैं अब लव्ड नहीं फील कर रही हूँ। तो वहां पार्टनर की जरूरत है बोलना, वो फील कराना कि नहीं, अभी भी तुम अट्रैक्टिव हो, अभी भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, या फैमिली मेंबर्स को भी वो इम्पोर्टेंस देना होगा। कभी कभी हस्बैंड को बोलना पड़ेगा कि तुम अभी भी वैसी ही ब्यूटीफुल हो जैसे मैं तुमसे पहली बार मिला था। कभी कभी हस्बैंड को लगेगा ये फिल्मी डायलॉग मेरे से बोला नहीं जाएगा, पर ये फिल्मी डायलॉग एक लाइन आपके बोलने से आपकी वाइफ के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सेल्फ बूस्टिंग आ जाएगी कि यस, मैं अभी भी वैल्यूएबल हूँ मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए। एंड ये रेमेडी जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी ये सारी तो प्रॉब्लम्स है कैसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आपको जब आपको फील हो, ये मैं मेनोपॉजल वुमेन के लिए बोल रही हूँ, फैमिली पर्सन के लिए नहीं। जब आपको फील हो कि मैं बहुत अनहैप्पी फील कर रही हूँ, मुझे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं अपने लिए, नेगेटिव थॉट्स, तब आप ग्राउंडेड थेरेपी टेक्निक्स कीजिएगा। ग्राउंडेड टेक्निक्स में क्या होता है, आप अपने आप को जहां पे आप खड़े हैं वहां फील कीजिएगा कि मैं 5 चीजें क्या देख पा रही हूँ और वो मेरी लाइफ में क्या हेल्प कर रही है। 4 चीजें मैं क्या टच कर पा रही हूँ मेरे सराउंडिंग्स और वो मेरी लाइफ में क्या हेल्प करती है। उसके बाद 3 चीजें मैं क्या स्मेल कर पा रही हूँ जो मेरी लाइफ में हेल्प करती है। वैसे ही एक चीज होगा कि मैं क्या स्मेल कर, सेकंड 2 चीज मैं क्या स्मेल कर पा रही हूँ जो मेरी लाइफ में हेल्प होगा। एंड एक चीज मैं क्या टेस्ट कर रही हूँ जो मुझे हैप्पी फील करा रहा है। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन को हमें उस समय यूज करना होगा सो दैट जो नेगेटिविटी हमारे अंदर चल रही है उससे हम थोड़े से डाइवर्ट हो पाएंगे। एंड एवरी डे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको 4-7-8 वाली टेक्निक्स यूज करनी होगी। जैसे आप 4 में जब आप ब्रीथ इन करेंगे तो 1 2 3 4 4 तक आप इन करेंगे एंड होल्ड करेंगे 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद एक्सेल जब करेंगे तो वो भी 8 तक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेल करेंगे। ये आपके स्लीप में हेल्प करेगी, आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी और आपको कंसंट्रेशन में हेल्प करेगी। थैंक यू। हेलो डॉक्टर रागिनी मैम। जो ये हम आज एक्चुअली मेरा ना थोड़ा सा वायरल हो रहा था
ओहो। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये पहले पूरा समझा ले। बेसिकली आज ये जो हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया है, इसमें जो सबसे जरूरी चीज़ है वो ये है कि हम अपने फैमिली वालों को लेकर के बैठें और उनको इसके बारे में बताएं। फैमिली सपोर्ट किस ढंग से जरूरी होता है और उसके बिना इसको करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका कंफ्यूजन बढ़ता चला जाता है। दूसरी चीज क्या है कि जैसे मैंने पहले भी बताया, ये वो समय है जब अंत में अपने आप को खुद ही संभालना पड़ता है, अपना सपोर्ट खुद बनना पड़ता है। सपोर्ट को आप जब तक बाहर ढूंढते रहते हो, वो सपोर्ट सपोर्ट नहीं होता है। सपोर्ट अपने आप को ही लेना होता है। तो आपको अपने को री इन्वेंट करना है इस समय में। किस ढंग से करना है? सबसे पहली चीज तो ये है कि इस को एक वो मत समझिए कि इसके लिए कोई गिल्ट लगना है कि मैंने अपना काम पूरी तरह से नहीं किया, या मैं बच्चे को अभी किसी इंटरव्यू के लिए जाना था लेकिन मैंने ठीक से उसको सपोर्ट नहीं दे पाई। नहीं, आपने जो कुछ किया बहुत अच्छे से किया। इस समय आपका समय ऐसा है जब उनको आपके लिए आपका सपोर्ट बनना है, और खुद आप भी अपने आप को संभालेंगे, अपनी हॉबीज को, अपनी मी टाइम को, इन सबको आगे की तरफ लाएंगे। तो ये मीनोपॉज को कोई बीमारी नहीं है, इसकी एज सच कोई दवाई नहीं होती है। इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए होता है, जिसमें होलिस्टिक अप्रोच में आपका मेंटल हेल्थ के लिए चारों तरफ से हर किस्म का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। और इसमें दवाइयाँ हम देते हैं सिर्फ जब आपको कोई एडेड प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे कि आपके वासोमोटर सिम्टम्स हो रहे हो, या बहुत यंग एज में जिन लोगों को मेनोपॉज हो गया है, वहाँ उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो हार्मोनल थेरेपी लें, खास करके अगर 40 के पहले आपका मेनोपॉज हो गया है, क्योंकि इसका असर आपकी हड्डियों पे, आपके हार्ट पे, हर चीज पे पड़ता है। लेकिन पर से मेंटल कंफ्यूजन के लिए हम आपको कोई हार्मोनल थेरेपी नहीं देते हैं। इसके लिए जो थेरेपी चाहिए, नंबर एक, जैसे मैंने आपको बताया, खुद का सहारा खुद बने, परिवार वालों को इसकी अंडरस्टैंडिंग कराएं, साथ में अपने को री इन्वेंट करें, अपनी हॉबीज को जगाएं और एक थोड़ा सा मी टाइम अपने लिए रखें। और अल्टीमेटली अगर आपको लगता है कि नहीं, गाड़ी संभल नहीं रही है, पटरी पर नहीं आ रही है, तो बहुत जरूरी है कि आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का सहारा लीजिए। बहुत ही डिफरेंट टाइप की थेरेपीज होती हैं। डॉक्टर मुनिया, कुछ आप थेरेपीज के बारे में बताएंगी कि ये सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, क्या इन सब, ये क्या होती है और इन सब का क्या कुछ रोल है इसमें? हाँ, सीबीटी से भी ज्यादा एडवांस थेरेपी अभी एनएलपी एंड हिप्नोथेरेपी में कराती हूँ। हिप्नोथेरेपी में आपको ट्रांस में लेकर जाती हूँ और ट्रांस में लेकर जाने के बाद आपको फील कराती हूँ कि आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो ट्रांस में, और वो रिकॉर्डिंग में पेशेंट को देती हूँ, वो उनको सुनना पड़ता है एवरी डे। और सेकेंडली, जो बैगेजेस हम लोग कैरी करते हैं जिसके कारण कभी कभी चीजें, उस बैगेजेस के कारण जो जो पेशेंट मतलब फीमेल्स ऑलरेडी डिप्रेशन में है या थोड़ा सा टिंच ऑफ डिप्रेशन है या एंजाइटी है, उनका इस मेनोपॉजल एज में और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिसके कारण हम थेरेपी देकर जो बैगेजेस वो कैरी कर रहे होते हैं, वो बैगेजेस हम लोग वेंट आउट कराते हैं। और उसके बाद वो फील, जो हॉट फ्लैशेस होते हैं उसमें एक स्क्रिप्ट होता है जिसमें मैं फील कराती हूँ ट्रांस में ले जाकर कि आपकी बॉडी में वो कूल एंड ठंडी ठंडी चीजें बह रही हैं और आप रिलैक्स कूल फील कर रहे हो। तो बहुत तरह की चीजें होती है। एक ईईटी होती है, एम्पावरमेंट टेक्निक होती है, जिसमें आपके जो यहाँ रब करके आपके जो दबे हुए इमोशंस हैं वो उभर के आते हैं कि क्यों ये सारी चीजें फील हो रही है। अनकॉन्शियस से वो चीजें उभर के आती हैं और जो इमोशन उभर के आती है उस पे हम लोग वर्क करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे डिफरेंट डिफरेंट थेरेपी हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे एक है कि आपका माइंड जो फ्रेम कर चुका है कि ये मैं करूंगी, वो उसको हम लोग रीफ्रेम कराते हैं। कुछ माइंड से सिग्नल आते हैं बॉडी में, और उस सिग्नल के थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं और रीफ्रेम करते हैं कि हमें आगे कैसे अपने आप को चेंज करना है। एक मैं और आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी डॉक्टर मुनिया। ये जो समय होता है, ये औरत के लिए एक बहुत ही अजीब सा समय होता है।
अगर देखा जाए तो उम्र के असर से चेहरा, बॉडी सब चेंज होता रहता है, थोड़ा सा वजन भी बढ़ जाता है और एक लो स्टीम आती जाती है कि शायद मैं ऐसे नहीं हूं। और एक आजकल के समय में ये भी देखा गया है कुछ इस समय थोड़े जिसे कहते हैं कि सेक्सुअल डिसफंक्शन को भी ये जन्म देता है, और उसके कारण भी मैरिटल रिलेशनशिप्स बहुत खराब हो जाती हैं। कई बार वहां कहीं कुछ भी नहीं होता है, लेकिन औरत अपनी सेल्फ स्टीम के कारण, जो लो सेल्फ स्टीम के कारण इस किस्म के क्वेश्चन उठाती है और वो घर में एक झगड़े का कारण बनते हैं। तो क्या इन किस्म की भी लेडीज के लिए आपके पास कोई हेल्पफुल टेक्निक होती है, किसी किस्म की कोई साइकोथेरेपी इनको दी जा सकती है? यस मैम, ये सारी चीजें भी वहीं डेवलप होती है जहां आप बैगेजेस कैरी कर रहे हो। चाइल्डहुड में बहुत नेग्लेक्ट हुआ है या बहुत ब्रेकअप्स हुए हैं, खोने का डर हुआ है, रिलेशनशिप को आप बांध के रख रहे हो, वहां पे ये थोड़ा सा सिचुएशन आते ही ये ट्रिगर हो जाता है। और ट्रिगर होने के बाद दोनों तरफ से होती है, या सेक्सुअल रिलेशनशिप में वो लिबिडो डाउन होने के कारण मेल्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, या फीमेल को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, मेल से फील होता है कि मुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए वो फीमेल्स भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए चली जाती है। तो वहां उस फीमेल, अगर मेल का है तो यहाँ कपल थेरेपी करती हूँ, कपल सेशन लेती हूँ, और उसके बाद वहां काउंसलिंग करके थेरेपी देके उसे सेटल करती हूँ। बट अगर वो विलिंग है तो, अगर विलिंग नहीं है, हस्बैंड अगर विलिंग नहीं है कि मुझे नहीं रहना है, वहां मेरा रोल नहीं होता है। पर अगर वाइफ अननेसेसरी शक करिए, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, दो वाइफ अपने आप को लो फील करती है, ब्यूटीफुल फील नहीं करती है, पहले जैसे एनर्जेटिक फील नहीं करती है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, वहां वाइफ के अंदर बहुत क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि शायद मेरे हस्बैंड बाहर लड़कियों के पास जा रहे हैं या दूसरी लड़कियों को देख रहे हैं। उसे पैरानॉइड डिप्रेशन बोलते हैं या साइकोसिस बोलते हैं। यहाँ पे हमें वाइफ पे वर्क करना होगा। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आती है जो ऐसी भी कंप्लेन करती है कि मेरे हस्बैंड बाहर निकलने के पहले एक खांस देते हैं ताकि नेबर जो है वो बाहर निकल जाए। तो ऐसे ऐसे पैरानॉइड, सस्पिशियस, खुद से क्रिएट किया हुआ स्टोरी उन लोग अपने माइंड में डालते हैं। तो वहां उन लेडीज, उन फीमेल्स में मैं वर्क करती हूँ थ्रू थेरेपी। तो आपका बिना किसी को एक्सपोज किए किसी सक्सेस स्टोरी को आप शेयर करना चाहेंगी? हाँ श्योर मैम। मेरे पास एक पेशेंट आती थी, उसके बहुत बच्चों में गैप था। बड़ा बेटा 21 साल का था और जो छोटा बेटा हुआ था वो 2 साल का था। तो वहां वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड उसके बाद मेनोपॉजल स्टेज भी आ गया था। तो वहां लेडीज का कहना था कि मैं अब मोटी हो गई हूँ माँ होने के बाद, और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप उसकी माँ के साथ हो रहा है, और इसलिए उसकी माँ कॉन्स्पिरेसी करके मुझे बाहर मैके भेज दे रही है ताकि मेरे हस्बैंड अपने माँ के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सके। और उसके बाद, ये होने के बाद वो घर जब आई, हस्बैंड के साथ रहने लगी, तो वहां उसको लगने लगा कि मेरे हस्बैंड, मेरी नेबर को जो बता रही थी, सीढ़ियों से उतरते टाइम एक खांस देते हैं, मेरी नेबर आ जाती है, जब आते हैं तो खांस देते हैं, या उस लड़की को देख रहे थे वो पैरानॉइड। और अगर आप उन्हें बोलेंगे कि ये सारी चीजें झूठ है, तो उस लेडी को गुस्सा आ जाता था कि मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, मुझे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, पर ये सच है। जब मैंने उनके बेटे से, जो 24 ईयर्स के बेटे थे, कॉलेज जॉब कर रहे थे, उनसे मैंने पूछा तो वो, उन्होंने बताया, अलग से पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, ये मम्मी का सस्पिशियस नेचर है पापा पे। और पापा भी परेशान क्योंकि अननेसेसरी लड़ाइयां होती थी। सेम इसी तरह से एक गांव की लेडी है, वो आई थी, उनका कहना था कि मेरे हस्बैंड अपनी बहू के साथ ऐसे टच कर दिए, अपनी बहू को इस तरह से पीछे से पकड़ लिए, तो बहुत सारी, बड़ी बहू को पकड़ लिए, अपनी बेटी के साथ करने लगे, बेटी जानबूझ के अपने पति को डिवोर्स देकर आ गई है, अपने पापा के साथ रह रही है, और बाप बेटे में ये सारी चीजें चल रही। तो ये मेनोपॉजल होने के बाद वो साइकोसिस चीजें भी आने लग जाती है, जिसमें आप पैरानॉइड होने लग जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप किस किस्म की थेरेपी देते हैं? वही मैम, जो बैगेजेस पहले अनकॉन्शियस माइंड में बहुत बैगेजेस हुए रहते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ रहता है,
जिसके कारण गिल्ट डेवलप हो जाती है, और ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होकर बाहर इस तरह से निकलती हैं मेनोपॉजल एज में। जो हिडन रहता है वो मेनोपॉजल एज में साइकोसिस वे में बाहर दिखने लग जाता है, बॉटल अप हो जाता है। तो वहां पहले वेंट आउट कराते हैं, उसके बाद उनके माइंड में जो फ्रेम बना हुआ है उसे रीफ्रेम कराते हैं। तो देखिए, आप जो डिस्कशन है इसके दो एंगल निकले। एक एंगल तो ये निकला कि आपका जब मेनोपॉज हो रहा है आपको पारिवारिक सपोर्ट चाहिए जिससे कि आप शांति से इस ट्रांजिशन को रह सकें। और इसका जो दूसरा एंगल है वो ये है कि जो इस समय आपके दिमाग में परेशानियां चल रही हैं, कई बार वो अननेसेसरी बढ़ के परिवार के बिखराव का कारण भी बन सकती हैं। तो ऐसे कंडीशन में बहुत जरूरी है अपने आप को बिजी रखना, अपने लिए खुद का। जैसे मैं इस बात को बराबर कहती हूँ कि मेनोपॉज आपकी एक सेकेंड लाइफ है। आपने जिंदगी को फिर से जीरो से शुरू किया। इस जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान आप खुद है। आपने सब पूरी जिंदगी परिवार, बच्चों, पति, सोसाइटी के लिए लगा चुके हैं। और ये जो सेकेंड लाइफ है आपकी, ये आपके लिए पहले है, औरों के लिए बाद में है। और अगर किसी भी समय में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं अपने आप को, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि इस समय आप एक एक्सपर्ट की सलाह लें और अपने बाकी बची जिंदगी को बहुत ही अच्छी तरह से जीने में आप सक्सेस कर सकें। क्योंकि इस समय लॉन्गेविटी बढ़ रही है। लेडीज की उम्र 70-80 साल तक हो रही है। ऑलमोस्ट 25 से 30 साल आपको इस पीरियड में रहना है। तो जब भी आपके दिमाग में कोई भी परेशानी हो, उसको बढ़ने देने के पहले ही उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। सो इस चीज के साथ मैं आज का प्रोग्राम खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुनिया, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छी तरह से हर चीज सबको बताई। ओवर टू यू डॉक्टर दीपिका। दीपिका। Yes, ma'am. Thank you so much. Thanks a lot for this wonderful insights, Dr. Ragini ma'am and Dr. Munia. थैंक यू। क्वेश्चन आंसर सेशन है। अगर हमारे आज के दिन लाइव अटेंडेंस थोड़े कम दिख रहे हैं मुझे, बट अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, किसी के दिमाग पे कुछ आता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू इंटरेक्ट विद द एक्सपर्ट्स टुडे। ये जो हमारा वेबिनार है इसकी रिकॉर्डिंग रहती है हमारी MySakhi.in वेबसाइट पर भी, और फेसबुक लाइव का जो लिंक अभी शेयर किया है, जैक्सन पाल फार्मास्यूटिकल्स का जो फेसबुक लाइव, उसमें भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है इसकी, जिसकी रिकॉर्डिंग बाद में भी आप देख सकते हैं फेसबुक पर जाकर। सो यू कैन शेयर दैट लिंक फ्रॉम द चैट बॉक्स विद योर फ्रेंड्स, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके। अगर आगे कोई क्वेश्चंस नहीं है आज, तो हम एक थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका माई सखी के ऊपर। ये जो CSR इनिशिएटिव है जैक्सन पाल का, विल जस्ट टेक यू थ्रू इट। माई सखी इज अ CSR initiative of Jackson Pal Pharma, one of the leading pharmaceutical companies in women's health. With this initiative, Jackson Pal is involved in spreading public awareness about women's health from adolescence to menopause. ये जो besides these webinars, we also have made a very positive impact by building sanitation facilities. जो गर्ल्स स्कूल्स हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में, वहां पर विमेन्स टॉयलेट फैसिलिटीज बनाई गई हैं, और साथ ही में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में वहां की गर्ल्स के लिए प्रोग्राम्स रखे गए हैं, जो कि अगेन मेडिकल एक्सपर्ट्स ने जाकर वहां पर लड़कियों को समझाया है किस तरह मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है। So with this aim of providing public awareness about women's health, we have made this MySakhi.in website, which will be providing you educational content, also public awareness programs like today's. इन सब की रिकॉर्डिंग आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी MySakhi.in, और जो नेक्स्ट प्रोग्राम आने वाला है उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं इसी वेबसाइट पर जाकर।
सो नेक्स्ट हमारा जो वेबिनार आने वाला है, इट इज ऑन 14th of February, अगेन फ्राइडे 3:30। इसके अंदर मैडम रागिनी हमारे को बताएंगे फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जो होता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या हो सकती हैं जिनसे आपको फायदा मिले मेनोपॉज में। सो HRT ऑफ कोर्स फार्मा मैनेजमेंट है, जो कि आप अपने डॉक्टर्स के बोलने पर ही लेंगे, उनके प्रिस्क्राइब करने पे ही लेंगे। तो you can register for these future events, go to mysaki.in events page और वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। So we look forward to meeting you again. Scan the QR code and explore more on menopause with mysaki.in. Thank you all. We look forward to seeing you again. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank Bye. you. Thank you so Thank you. much. Bye-bye. Bye.